A very good morning to all my dear students. Today we are just going to start our unit number 3, and in this we are just going to do the chapter Robbie My Robot, that is the section 1 of unit 3. So before starting this very chapter, we have to consider that how the robots are considered to be the best discovery, or you can say invention, out of the science material. So here, unit 3, science has used to say that as you have probably noticed, in the first of the paragraph here comes to know that many of the people generally notice that we are surrounded with so many appliances related to the science, right, about these days, because science is all about a kind of thing which we can do our work easily. So there are a lot of machines, robots, aeroplanes, cars, mobile phones, televisions, all are things which we just generally surrounded by. So here it would be a very different world without it. We cannot suppose anything without them. And of course everyone knows about famous scientists. एंड ऑफ कोर्स हर कोई जानता है फेमस साइंटिस्ट के बारे में, देयर माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में एंड डिस्कवरीज के बारे में, राइट. Modern science is really just a well organized way of doing something which people have been trying to do for thousands of years. मॉडर्न साइंस एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड वे में एक ऐसी चीज़ है, कमाल की चीज़ है, जिसे लोग बहुत सालों से यानी कि पिछले कई थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ट्राई कर रहे हैं. सो कुछ भी एक नई चीज़ इन्वेंट होती है, देन इट will be included under the science technology. Many civilization did not get much further than saying. ऐसे बहुत सारे सिविलाइजेशन यानी सभ्यताएं हैं ऐसी, डिड नॉट गेट मच फर्दर देन सेइंग, वो सिर्फ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए सिर्फ कहने के अलावा. वो कहती है गॉड डिड इट. इट मीन्स कुछ भी होता है वो भगवान करते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन सभी नहीं कहते. The unit science includes 4 sections. Now here this unit number 3, which name is science, including 4 sections. One is Robbie my robot. Another one is keeping food fresh, health is wealth, and the bionic boy. So these are 4 chapters which are just included under the unit 3. We have to read out all these lessons, and we have to find out how the science has changed our own ways of living. So let's get started with the first of the chapter here. We come to know here the Robbie My Robot, section 1. Here the author says, have you ever seen a robot? No. क्या आपने कभी रोबोट देखा है? आपका जवाब हो सकता है कि ना, शायद आपने नहीं देखा हो. So now meet my robot friend and philosopher Robbie, to be precise. Its name is Robbie, that is. चलिए मिलते हैं मेरे फ्रेंड रॉबर्ट से, जो फिलोसोफर भी है, यानी कि चीज़ों में फ़िलोसफीज़ भी ढूंढ लेता है. रॉबी, जिसका नाम है रॉबी. टू मीट प्रिसाइज इस नेम इज़ रॉबी 999XHA. रॉबी इसका छोटा नाम है, बल्कि इसका पूरा नाम है रॉबी 999XHA, बिकॉज ये साइंटिफिकल कोड है, तो ये हम इसे ऐसा भी बुला सकते हैं. यू मे वंडर व्हाट इज़ रॉबी 999XHA. तुम्हें जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि हमारा रॉबी 999XHA है क्या. Just as car, washing machine or Xerox machine are of different models with different names, does this strange name also indicating something similar? जैसे कि कार्स, वॉशिंग मशीन, जीरोक्स मशीन जो कॉपीज़ करती हैं, वो कुछ अलग तरीके के मॉडल से होते हैं, उनके अलग नाम होते हैं. तो क्या हम इस ट्रेन से नाम को भी, यानी रॉबी नाम को भी, क्या हम अलग तरीके से बुलाएं? येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. इट्स अ पर्टिकुलर डोमेस्टिक मॉडल. ये भी उन्हीं की तरह ही है, जैसे हम अपनी कार, मशीन्स वगैरह को यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही ये भी एक डोमेस्टिक मॉडल है जो घरेलू काम भी कर सकता है, यानी कि एक ऐसा जिसके साथ हम फेमिलियरली रह सकते हैं. और फिर मॉडल ऑफ ए रोबोट का एक ऐसा मॉडल है, यानी कि मॉडल नंबर है, दैट इज़ Robbie 999XHA. 999 स्टैंड फॉर द ईयर ऑफ इट्स मेक, यानी कि 999 इसके जिस सन में ये बना था, जिस ईयर में ये बना था, उसको इंडिकेट करता है, दैट इज़ 1999. X here stand for डिलक्स मॉडल. Here X मीन्स होता है कि मॉडल कौन सा, दैट इज़ डिलक्स मॉडल. एंड HA इज़ फॉर होम अप्लायंसेज. इट मीन्स यहाँ पर H किसका, H मीन्स होता है होम, A फॉर अप्लायंसेज. सो यहाँ पर इसका टोटली इन केस है कि रॉबी इज गिवन टू द नेम, दैट इज़ द प्रिसाइज नेम, एंड द फुल नेम इज़ 999XHA, एंड X इज़ द
refers to the deluxe model, and HA means the home appliances, and 999 indicates the year in which it manufactured. So after that we come to know that my Robbie is made of shining metals. Its head, chest, आर्म्स एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मेटल. मेरे रोबी में हर एक चीज़ शाइनी मेटल से बनी हुई है. इसका जो सिर है, इसके जो चेस्ट है और इसके आर्म्स है, सारी चीज़ें हर एक चीज़ मेटल से बनी हुई है. राइट. सो इट्स हेड, चेस्ट एंड आर्म्स एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मेटल्स. इट्स ब्लू आइज एंड ग्लोइंग इलेक्ट्रिक ब्लब्स एंड इट मूव्स ऑन 4 व्हील्स लाइक माई टॉय कार. ये बिल्कुल 4 व्हील्स पे घूमने वाले मेरी टॉय कार की तरह घूमता है. और इसकी आंखों में एक इलेक्ट्रिक ब्लब है जो ब्लू कलर का है. वो ब्लब ऐसे यू कैन से ग्लो करता है. एंड वो नाउ हियर वी आर जस्ट गोइंग टू गेटिंग द सम काइंड ऑफ फीचर्स कि जो उसका रोबी रोबोट है वो किस तरीके से हमारा दिखता है, यानी कि किस तरीके के फीचर्स हैं उसमें. जिसकी मेटलिक बॉडी है जो सारी मेटल से बनी हुई है. उसकी आइज़ कैसी हैं, ब्लू कलर बट ऑफ इलेक्ट्रिक ब्लब. एंड यू शुड हियर हिम स्पीक. और तुम उसे बोलते हुए भी सुन सकते हो. सॉफ्ट एंड सूदिंग, काफ़ी सॉफ्ट एंड सूदिंग बोलता है. नॉट लाइक द कंप्यूटराइज मेटेलिक वॉइसेस ऑफ अदर रोबोट्स. वो ऐसे जैसे अदर रोबोट्स बोलते हैं ना मेटेलिक वॉइसेस की तरह, जैसे कि मैं रोबोट हूँ, वो इस तरह से नहीं बोलता. वो थोड़ा सा पोलाइट या सॉफ्ट उसमें सूदिंग है जो उसमें सॉफ्टवेयर डाला गया है. उसकी वजह से वो काफ़ी अच्छे से बोलता है. इट इज़ नेवर लाउड और पैसिव. ये कभी भी लाउड या पैसिव नहीं होता है या रुकता है एकदम से, बहुत तेज नहीं बोलता. इंडिड आई लव माई रॉबी फॉर दैट. मैं इसलिए अपनी रॉबी से बहुत प्यार करता हूँ. कम ऑन रॉबी ब्रिंग मिल्क. रॉबी प्लीज़ मेरे लिए एक मिल्क, यू कैन से एक ग्लास ऑफ मिल्क ले आओ, यानी कि दूध का एक गिलास ले आओ. ये सनी आई विल से रॉबी. रॉबी कहता है हाँ सनी मैं अभी ले आऊँगा. इट गोज टू द किचन एंड कम बैक ब्रिंगिंग अ ग्लास. डू यू वांट एनीथिंग एल्स सनी. वो मेरे लिए किचन जाता है और वहाँ से मेरे लिए एक ग्लास ऑफ मिल्क ले आता है. फिर वो मुझसे पूछता है तुम्हें कुछ और चाहिए सनी. येस आई वॉन्ट बिस्किट टू. देन सनी कहता है येस मुझे बिस्किट भी चाहिए. फाइन आई विल ब्रिंग बिस्किट टू सेज रॉबी. रॉबी कहता है येस मैं तुम्हारे लिए बिस्किट भी ले आऊँगा. एनीथिंग एल्स, और कुछ चाहिए. देन सनी कहता है नो. इट मीन्स ये रोबोट किसका है, सनी का. रिमेंबर दिस. सो हियर वी कम टू नो दैट रॉबी टर्न्स एंड गोज बैक टू द किचन टू ब्रिंग मी बिस्किट्स. वो वापस मुड़ता है और जाता है किचन में मेरे लिए बिस्किट लाने के लिए. हैड इट बीन एनी प्रीवियस सर्वेंट शामू ही वुड हैव सर्टनली शाउटेड इन एंगर व्हाई डिडंट यू आस्क फॉर इट विद मिल्क बट माई रॉबी इज ओबीडियंट. हाँ, अगर मेरे घर में कोई ऐसा सर्वेंट होता शामू की तरह जो प्रीवियस उनका नौकर था, वो मुझसे गुस्से में कहता कि तुम दूध के साथ ही बिस्किट क्यों नहीं मांग सकते हो, उसी वक्त नहीं ले आता मैं. राइट. हम कहते हैं ना जनरली, हमारी मम्मा भी बोलती हैं तुम एक ही बार में काम बता दिया करो ताकि मैं एक ही चीज़ में ले आऊँगी. बट मेरा रोबी ऐसा नहीं है. मेरा रोबी हमेशा ओबीडेंट है, वो मुझे कभी नहीं डांटता. रोबी रिटर्न्स विद अ प्लेट फुल ऑफ बिस्किट. यानी कि एक फुल प्लेट बिस्किट के साथ वो मेरा रोबी जो है वो रिटर्न यानी वापस आता है. आई कैन अगेन आस्क इट टू ब्रिंग मी टॉफ़ीज़. मैं उसे दोबारा कहती हूँ मेरे लिए टॉफ़ी ले आओ. आई नो इट विल नॉट बिकम एंग्री. क्योंकि वो गुस्सा नहीं होगा, इसलिए मैं उसे कुछ भी काम देता हूँ वो कर देता है. रोबी इज़ ऑलवेज हेल्पफुल. वो हमेशा मेरी मदद करता है. रोबी इज़ हार्ड वर्किंग टू. रोबी बहुत ज़्यादा मेहनती है. इट डज़ ऑल काइंड ऑफ टास्क एट होम. वो घर के सारे काम कर लेता है. इट क्लीन्स द फ्लोर. फर्श को साफ़ कर देता है. इट वॉशेस क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स. वो कपड़े धो देता है, बर्तन धो देता है, मम्मी की हेल्प कर देता है किचन में. मम्मी हैज़ ऑल द प्रेजेस फॉर इट. मम्मी इसकी हमेशा प्रेस करती रहती है. बट माइंड यू प्लीज़ डोंट कैरी द इम्प्रेशन दैट रॉबी इज सिंपली ए मैकेनिकल सर्वेंट ओनली गुड एट ओनली डूइंग द फिजिकल वर्क. बट मैं आपको बता दूं कि रॉबी जो है वो एक मैकेनिकल सर्वेंट या नौकर नहीं है जो सिर्फ फिजिकल काम करता है. इट इज़ मच मोर देन दैट. वो इससे ज़्यादा, बहुत कुछ ज़्यादा है. नाउ इट हैज़ ब्रेन टू. इसके पास खुद का दिमाग भी है. सो हियर आर यू नॉट रेडी टू बिलीव मी. अच्छा, तो आपको मेरे रॉबी से मिलने के बाद ये बिलीव नहीं हो रहा ना कि उसके पास दिमाग भी है. ओके, लेट मी आस्क रॉबी ए फ्यू क्वेश्चन अबाउट हिज ओन कम्युनिटी. मैं उसी की कम्युनिटी से कुछ सवाल पूछता हूँ, तो अब आप देखना कैसे जवाब देता है. मैंने कहा हे रॉबी कम हियर. मैंने रॉबी को बुलाया, कहा यहाँ आओ. येस सनी व्हाट कैन आई डू फॉर यू. वो कहता है येस सनी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. आस्क रॉबी एज इट कम्स एंड स्टैंड्स फॉर मी. आई वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट योर फैमिली. वो कहता है कि रॉबी यहाँ आ जाओ, मैं तुमसे तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ
सवाल पूछूंगा। देन रोबी कहता है यस यू मे प्लीज़, प्लीज़ पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट डज द वर्ड रोबोट मीन? तो रोबोट का मतलब क्या है रोबी? वो सनी करता है क्वेश्चन किससे? रोबी से। ना गुड क्वेश्चन से रोबी एंड कंटिन्यूस। वो कहता है अच्छा जो क्वेश्चन है। रोबी कहता है एंड कंटिन्यूस। वो कहता है द वर्ड रोबोट सनी you will be surprised to know has been derived from the Czech and you can say robota. So here robota से you can say derive हुआ है robot. It means slave. Slave का मतलब होता है नौकर या फिर दास. In Cizan's language में robota का मतलब होता है, what is robota meaning? That is to be servant. The word was first used by Cizan's writer Karel Čapek in his play. Now वो सबसे पहले जो वर्ड है वो यूज़ किया गया था किसके द्वारा? Who has used this? It has been used by Rosum Universal Robots in 1921 में कैरल कैपेक ने अपने रोजम यूनिवर्सल रोबोट्स में इस चीज़ को यूज़ किया था, राइट। यहाँ पे रोजम यूनिवर्सल रोबोट्स क्या है? उसका एक प्ले है, यानी कि एक नाटक है जिसमें जो हम स्टेज पे प्ले करते हैं वो 1921 में लिखा गया था। और लिखा किसने था? सीजेज राइटर था एक, जो एक यू कैन से कंट्री है, यू कैन से फेमिलियर टाउन है कंट्री है सीजेज, एंड राइटर है उसके कैरल कैपेक। सो यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबी जो है वो अपने कम्युनिटी के बारे में अच्छे से जानता है कि रोबोट जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, कहाँ से पैदा हुआ है और उसका मतलब क्या है और इसको पहली बार यूज़ किसने किया था। सो वी हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स। नाउ अभी पूछते हैं ओह वे बैक इन 1920। नाउ अभी जो सनी है वो कहता है वो 1920 में। देन रॉबी जो है वो कहता है यस सर, यस सनी, मैं 1920 की बात कर रहा हूँ। व्हाट वाज द प्ले अबाउट? ओके, तो रोबी बताओ अब कि प्ले किस बारे में था। कैन यू गिव मी सम आइडिया? क्या तुम मुझे बता सकते हो? यस वाई नॉट सनी, क्यों नहीं बताऊंगा मैं आपको। इन द प्ले ए ग्रुप ऑफ मैकेनिकल स्लेव्स और रोबोट्स रेबल अगेंस्ट देयर ह्यूमन मास्टर। रेबल मीन्स होता है टू अपोज और फाइट अगेंस्ट समवन इन अ पोजिशन टू कंट्रोल समथिंग, राइट। सो यहाँ जनरली हमें पता चलता है कि जो रॉबी है वो बताता है कि ये प्ले है जिसमें बहुत सारे स्लेव्स थे, रोबोट बने हुए थे, और इसमें वो अपने ह्यूमन मास्टर यानी कि जो इंसान है जो जिसने उनको बनाया है, जिसके अंडर वो स्लेवरी कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट वो फाइट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ओह दैट साउंड डेंजरस, ये तो काफ़ी डेंजरस साउंड कर रहा है। बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ सेज रॉबी। बट ये ऐसा रॉबी कहता है कि आजकल पॉसिबल नहीं है। हाउ, क्यों, ऐसा कैसे? नाउ रॉबी कहता है वी आर गवर्नड बाई लॉज दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग एनी काइंड ऑफ मिस्चिफ अगेंस्ट अ ह्यूमन बींग। हमारे अंदर ऐसे लॉज फिट किए जाते हैं जिसके तहत हम किसी भी ह्यूमन बींग को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे किसी ह्यूमन बींग की जान पे बने। ओह इज़ इट, आई एम इग्नोरेंट अबाउट दैम, वट आर दे? मुझे तो पता ही नहीं वो क्या चीज़ें हैं। कैन यू टेल मी? येस वाई नॉट सनी, सेज रॉबी एंड कंटिन्यूज। दिस लॉज आर नोन एज द लॉज ऑफ रोबोटिक्स। इट मीन्स वी आर बाउंड अंडर द लॉज ऑफ रोबोटिक्स। या रोबोट्स जो है वो किन कानूनों के अंडर बाउंड है? वो है लॉज ऑफ रोबोटिक्स के, ऐसे कानून जो रोबोट्स के लिए बनाए गए हों। दे आर ऑल्सो नोन एज द एसिमोव्स लॉ ऑफ रोबोटिक्स। एसिमोव्स इज़ वन ऑफ द साइंटिस्ट पर्सन एंड उसने कुछ लॉज डेवलप किए थे, तो उन्हीं को ही बोलते हैं लॉज ऑफ रोबोटिक्स। एसिमोव्स लॉज, व्हाट इज दिस एसिमोव? अ नेम ऑफ व्हाट? रोबोट। नाउ अभी जो सनी है वो क्वेश्चन पूछता है एसिमोव लॉ क्या है, क्या है एसिमोव, है क्या, क्या एक नेम है या फिर एक रोबोट है? नाउ सनी कहता है नो 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 सनी इज़ द नेम ऑफ फेमस साइंस फिक्शन राइटर। ये एक साइंस फिक्शन राइटर हैं जो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग हु राइट मोर देन 500 बुक्स ऑन साइंस एंड साइंस फिक्शन। एक ऐसे राइटर लेखे जो बहुत सारी फिक्शनल जो है स्टोरीज वो लिखते हैं। वाओ 500 बुक्स, आई हैवंट रेड द 500 बुक्स। वाओ 500 बुक्स लिखी हैं लेकिन मैंने इनमें से एक भी नहीं पढ़ी है। हिज फुल नेम इज़ आइजैक एसिमोव। इट मीन्स वो कौन से राइटर थे, उनका फुल नाम था आइजैक एसिमोव। किनका राइटर नाम था? जो साइंस फिक्शंस राइटर यानी कि जो साइंस के ही फिक्शंस राइटिंग्स लिखते थे। इन 1940 रोबी बता रहा है 1940 ही रोट ए स्टोरी विच कंटेन द लॉज दैट डिड नॉट अलाउज ए रोबोट टू हार्म अ
ह्यूमन बींग बिकॉज ही नो रोबोट्स कैन बी डेंजरस इफ मिसगाइडेड। उन्होंने एक लॉ बुक लिखी थी रोबोट्स के लिए, क्योंकि उन्हें पता था किसी भी टाइम रोबोट्स को के साथ अगर उन्हें कोई मिसगाइड कर दे तो वो डेंजरस हो सकते हैं। देन सनी पूछता है टेल मी व्हाट आर दोज लॉज, तो मुझे बताओ वो कौन से लॉज थे। तो देन रोबोट सेज यस सनी आई विल स्टेट द लॉज वन बाय वन, मैं तुम्हें एक एक करके सारे लॉज बताता चलता हूँ। फर्स्ट लॉ में हमारा कानून पहला क्या है, ए रोबोट में नॉट इंजरी अ मैन ह्यूमन बींग और थ्रू इन एक्शन अलाउ अ ह्यूमन बींग टू कम टू हार्म। ऐसा कभी नहीं कि हम किसी भी ह्यूमन बींग को हार्म कर पाए, हार्म करें, बल्कि चाहे वो हमें हार्म करने आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो। देन सनी कहता फाइन विच मीन्स योर गुड सेल्फ कैन नॉट कंट्रोल हार्म मी, आई नीड नॉट बी स्केर्ड ऑफ यू, मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं है फिर तो। यस इट्स ऑब्वियस सनी, रॉबी कहता है कि यस बिल्कुल ठीक कह रही है रॉबी, ऐसा बिल्कुल सही बात है। Also you would not allow harm come to me by sitting tight, oh I mean by standing tight। अगर तुम मेरे पास खड़े भी हो तो भी तुम्हें मेरे यहाँ खड़े होने से तुम्हें कोई हार्म नहीं है। नाउ सनी कहता है परफेक्टली राइट, बिल्कुल सही कहा। तो सेकंड लॉ क्या है, नाउ रोबी कहता है यस सेकंड लॉ बताता हूँ। नाउ उसके अकॉर्डिंग सेकंड लॉ क्या है, अ रोबोट मस्ट ऑलवेज ओबे द ऑर्डर्स गिवन टू इट्स ह्यूमन बींग्स एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर्स कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। अब हर एक ऑर्डर ह्यूमन बींग्स को फॉलो, जो भी वो उनको ऑर्डर देंगे उनको ओबे करना है, लेकिन जहाँ पर पहला लॉ पर बात आती है, यानी कि अगर पहले लॉ का उल्लंघन होता है तो हम वो चीज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ह्यूमन बींग अपने रोबोट को कहे कि आप दूसरे ह्यूमन बींग को मार के आओ या फिर उससे हट करके आओ, देन हम ये नहीं करते हैं। देन सनी कहता है फाइन बहुत अच्छा, साइंस ओके टू में बहुत अच्छा है ये तो। आफ्टर ऑल यू ओबे ऑल माई ऑर्डर्स, तुम तो सारे मेरे ऑर्डर्स मानते हो। देन द थर्ड लॉ स्टेट दैट रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज सच प्रोटेक्शन डज नॉट कम इन कॉन्फ्लिक्ट्स विद द फर्स्ट एंड सेकंड लॉज। और थर्ड लॉ ऐसा है कि उनको अपने एग्जिस्टेंस, रेंज रोबोट को अपने खुद के बचाव में भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, चाहे उनको दूसरा या तीसरा लॉ जो है उनके साथ कन्फ्लिक्ट करनी पड़े, यानी कि उनको थर्ड लॉ बचाने के लिए फर्स्ट और सेकंड लॉ से भले ही फाइट करनी पड़े वो करते हैं। दैट्स अंडरस्टैंडेबल। द नेक्स्ट, वो कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। नेक्स्ट वो कहते हैं दैट्स ऑल सनी, बस इतना ही था। दीज आर 3 लॉज ओनली, सिर्फ 3 ही हैं। दीज लॉज हैव बी बिल्ट इनटू अस व्हाइल डिजाइनिंग अस, तीनों ही जो चीज़ें हैं वो हमें डिज़ाइन की जाती हैं जब हमें मैन्युफैक्चर किया जाता है, अब बनाया जाता है। सो आई नीड नॉट टू बी स्केर्ड ऑफ यू एट एनी टाइम। तो अब सनी कहता है मुझे तुमसे डरने की कभी कोई ज़रूरत नहीं है। नॉट एट एनी स्प्लिट सेकंड माय डियर सनी, तुम्हें एक सेकंड के भी, सेकंड यानी सबसे छोटा हिस्सा भी डरने की ज़रूरत नहीं है मुझसे। दैट्स फाइन रोबी, तो बहुत अच्छा रोबी। आई न्यू इट इज़ सो बट आई थॉट आई वुड रीअश्योर माई सेल्फ, मुझे लग रहा था कि शायद मैं तुम्हारे बारे में सही सोचता था, बस मैं अश्योर कर रहा था दोबारा से इस चीज़ को। रीअश्योर करना होता है व्हेन यू कैन से फाइंड योर सेल्फ नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग बट यू वांट टू रीअश्योर, राइट। यहाँ रीअश्योर का मतलब है जब आप पहले से ही श्योर हो लेकिन आप उसको डबल आप चेक कर रहे हो। नाउ माई प्लेजर सनी, वो कहते हैं, वो जब उसको थैंक यू बोल रहा है कि हाँ भाई इट्स ऑल फाइन, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी द लॉज, देन एट द पर्टिकुलर टाइम सनी सेज रॉबी सेज दैट माई प्लेजर, ये मेरा काम है, सेज रॉबी एंड आस्क एनी अदर क्वेश्चन सनी, तुम्हें और कोई क्वेश्चन पूछना सनी। नाउ सनी कहता है नॉट एट प्रेजेंट, मुझे अभी कुछ बात नहीं करनी है रॉबी, थैंक यू सो मच। सो आई होप दिस हैज़ बीन क्लियर टू यू दिस वेरी lesson now. Robbie My Robot is such a nice concept for the people who used to think that how the science technology overpower us and how we can relate each and everything related to our scientific theories. So here we have generally known many of the names about the writer, scientist, and even we come to know the real facts under the real name of Robbie the Robot, that is 999 XHA. Here 999 refers to the deluxe model. Deluxe refers to the thing which are just unique and very sweet, you can say very advanced technology. deluxe जिसे हम कहते हैं वो advanced technology से less होता है, it means ज़्यादा उसमें सारी advanced technologies होती हैं। So
हमें हर एक चीज़ जो पॉइंट है वो रिमेंबर करना है और हमें हर एक चीज़ जो है अपनी नोटबुक में लिखना है. सो ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द 9th class, sorry 8th class, I want to make you remember that you have to make the notes out of it. If you will write it down, some of the things, for example, you have to note down first thing that what is the name of the robot, that is Robbie, and who is the master of the Robbie, that is our Sunny. And after that was the full name of Robbie. Robbie's full name is Robbie X, sorry, 999XHA. Here 999XHA indicates the name of the years as well as the deluxe quality, and H means household and A for appliances. So here is somehow questions we can make out of this chapter. So try to make out all these questions and write it down in your fair notebook. And after this, in the next video, we will consult about the question and answers. I hope we will meet in the next video. Take care till and take care reading out of it.